السلام علیکم ناظرین کرام، راہ حق چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام آمیلہ تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر 73 مقامات پر ہوا ہے۔ یہ 73 مقام 25 سورتوں میں ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بلند مرتبت ہونے کی دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا۔ اللہ کے کئی پیغمبر فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہیں، جن میں حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مقدس میں بارہا ہوا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ تک ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے، جو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں حضرت یعقوب کے لقب اسرائیل سے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جو اپنے وقت کی سب سے لاڈلی امت قرار پائی۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے سلسلہ نسب سے بظاہر ان کے بعد نبی آخر الزمان تک کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ نبی رحمت کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے توحید پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائے وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ حضرت ابراہیم نے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے مقرر کیا۔ حضرت ابراہیم کے باپ دادا عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت کے وقت آپ کے والد کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام ناخور اور دوسرے کا نام حران تھا۔ حران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد لوط نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ عرب مورخین نے آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا ہے: ابراہیم بن طارق بن ناہور بن سروز بن ارغب بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری کائنات پر بادشاہت کی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک بادشاہ ذوالقرنین، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور جو کافر تھے ان میں ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا۔ نمرود نے بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پر سونے کا تاج رکھا، اور نمرود وہ شخص ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اور خدائی کا دعویٰ بھی سب سے پہلے اسی بدبخت نے کیا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری عبادت کرو، تو لوگ اسے خدا ماننے لگے۔ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا، خواب میں ستارے پر چاند کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اگلی رات چاند کو دیکھا، چاند پر سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ نمرود نے کاہن اور نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نمرود کے پاس نجومی اور کاہن اکٹھے ہوئے۔ اس زمانے میں نجومیوں اور کاہنوں کا عروج تھا۔ وہ ستاروں کی وجہ سے اور جنات سے جھوٹی خبریں لے کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ نجومیوں نے نمرود سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو سورج کی مانند بن کر آئے گا اور پوری کائنات پر چھا جائے گا، جو تیری بادشاہت اور دین کو ختم کرے گا۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمیں جنات نے بتایا ہے کہ بچہ اس شہر میں پیدا ہونے والا ہے، اور سابقہ کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچہ ان قریب آنے والا ہے۔ نمرود کو اپنی بادشاہت کے ختم ہونے کا خطرہ لگا۔ نمرود نے حکم دیا کہ جس گھر کے اندر بچے کی ولادت کی خبر ملے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ آج بھی کچھ لوگ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ دکھا کر اپنے مستقبل کا حال پوچھتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مستقبل کا حال بتاتے ہیں جنہیں خود اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مستقبل کی خبر دے اور بندہ اس پر یقین کر لے تو اللہ اس کی 40 روز کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ چند دنوں کے بعد نجومیوں
नजूमियों ने नमरूद से कहा कि आज की रात बच्चा बाप की पुश्त से माँ के रहम में दाखिल होगा। नमरूद ने कहा आप क्या करें? नमरूद ने अपने खास बंदों को इकट्ठा किया और मशवरा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर बादशाह का खसूसी बंदा था और बादशाह नमरूद की नजर में उनका खास मुकाम था। नमरूद ने अपने खास बंदों को इकट्ठा किया और मशवरा करने लगा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि खामिद और बीवी को आज रात के लिए अलग कर दो। 10-10 आदमियों पर एक निगरान मुकर्रर कर दिया और इसी तरह 10-10 औरतों पर भी एक निगरान मुकर्रर कर दिया और उन सब का निगरान नमरूद ने अपना खास आदमी आजर को निगरान मुकर्रर कर दिया कि तुम सब मर्दों की निगरानी करोगे और तुम्हारी बीवी अमीला औरतों की तरफ निगरानी करेंगी। कोई भी मियाँ बीवी एक दूसरे से ना मिले हैं आज की रात। अल्लाह की शान, जिस रात हजरत इब्राहीम ने अपनी वालदा के रहम में आना था वहाँ सख्त पहरा लगा हुआ था। जब सब सो जाते हैं मर्द भी और औरतें भी, तो आजर निगरानी करते हुए औरतों वाले हिस्से की तरफ आता है और अपनी बीवी को देखता है। तो हजरत इब्राहीम की वालदा अमीला उसी दिन अपने मखसूस अयाम से फारिग होकर गुस्ल करके नए कपड़े पहनती हैं। जब आजर ने अपनी बीवी अमीला को खूबसूरत कपड़ों में देखा तो समझ गए कि अमीला हैज से पाक होकर गुस्ल कर चुकी हैं। तो वो उसी रात अपनी बीवी से सोहबत कर लेते हैं। सुबह के वक्त नमरूद से नजूमियों ने कहा कि आज की रात बच्चा माँ के रहम में मुंतकिल हो चुका है। अब नमरूद ने ये ऐलान कर दिया कि जिस औरत को हमल के आसार जाहिर हों उस औरत को कत्ल कर दो। अल्लाह की शान, अमीला हामिला हुई लेकिन हमल के आसार जाहिर न हुए, उनका पेट बढ़ा ही नहीं। हत्ता कि जब आपको दर्द-ए-ज़ाह शुरू हुई तो आप एक वीराने में चली गईं। हज़रत इब्राहीम उसी वीराने में पैदा हुए। आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाया, फिर एक गड़ा खोदा, आपको उस गड़े में डाला, लकड़ियों का साया करके आपको छुपा दिया। नजूमियों ने कहा नमरूद से कि बच्चा इस दुनिया में आ गया है। नमरूद ने पूरे शहर के अंदर फौजियों को भेजा कि जाओ जहाँ बच्चा नजर आए उसे फौरन कत्ल कर दो। अमीला ने जाकर आजर को बताया कि बेटा पैदा हुआ है। आजर ने पूछा बच्चा कहाँ है? अमीला ने बताया फलां जगह छुपाया है। आजर रात को सबके सोने के बाद छुपकर उस जगह पर गया, वहाँ से बच्चे को उठाया, एक जगह गार खोदी और बच्चे को वहाँ छुपा दिया और गार के धाने पर पत्थर रख दिया ताकि कोई भी अंदर न जा सके। अल्लाह हजरत इब्राहीम की हिफाजत कर रहे थे क्योंकि हजरत इब्राहीम ने नमरूद की बादशाहत और उसके दीन को खत्म करना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा जब आपसे मिलने के लिए गार में आई तो देखा आप अपनी चारों उंगलियों को चूस रहे हैं। उनकी एक उंगली से दूध, एक उंगली से शहद, एक से पानी और एक से घी निकल रहा था। अल्लाह ने गैबी तौर पर उनके रिस्क का इंतजाम किया। हजरत इब्राहीम एक दिन के, एक हफ्ते के बच्चे के बराबर नजर आते थे। जब आप एक हफ्ते के हुए तो एक महीने के बच्चे के बराबर नजर आने लगे और जब एक महीने के हुए तो एक साल के बच्चे के बराबर नजर आने लगे और जब आप 15 दिन के हुए तो आप भागने वाले बच्चों की तरह नजर आने लगे। आपको इमामुल मुआहिदीन भी कहा जाता है। आप में तौहीद अल्लाह ने कूट कूट कर भरी हुई थी। जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आप चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे तो आपकी नजर आसमान पर चमकते हुए सितारे पर गई तो आपने कहा कि ये मेरा रब है। आपने थोड़ी देर के बाद देखा सितारा छुप जाता है। आपने कहा कि मैं डूबने वालों को रब नहीं मानता। फिर आपने चांद को देखा, आपने कहा ये सितारे से ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन है, यही मेरा रब है। फिर वो चांद भी गरूब हो गया। आपने कहा ये भी मेरा रब नहीं। फिर आपने सूरज को अगले दिन देखा, आपने कहा ये मेरा रब है, ये चांद से भी ज्यादा रोशन है और उसके आते ही अंधेरा चला गया लेकिन सूरज भी छुप गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं छुप जाने वाली चीजों को रब नहीं मानता, मैं शिर्क करने से बेजार हूँ, मैं सिर्फ एक अल्लाह को रब मानता हूँ। आपने सबकी नफी करके अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे थे, माँ की गोद में थे। अपनी माँ से पूछा अम्मी आपका खुदा कौन है और मेरा खुदा कौन है? तो माँ ने जवाब दिया तेरा खुदा मैं हूँ, मेरा खुदा तेरा बाप है और तेरे बाप का खुदा नमरूद है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नमरूद का खुदा कौन है? तो उनकी वालिदा खामोश हो गई। शाम के वक्त जब हजरत इब्राहीम के वालिद आजर घर आए तो अमीला ने कहा कि आपका बेटा अजीब किस्म के सवाल कर रहा है। आजर ने हजरत इब्राहीम से पूछा तुमने अपनी माँ से क्या पूछा है? हजरत इब्राहीम ने पूछा कि मेरा रब कौन है? आजर ने जवाब दिया तेरा रब तेरी माँ है, तेरी माँ का रब मैं हूँ और मेरा रब नमरूद है। हजरत इब्राहीम ने पूछा फिर नमरूद का रब कौन है? वालिद को गुस्सा आया और हजरत इब्राहीम के चेहरे पर तमाचा मारा और कहा खामोश हो जा। हजरत इब्राहीम की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो बचपन ही से हजरत इब्राहीम नमरूद, बुतों, सितारे, चांद और सूरज की नफी करते आए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनके वालिद आजर ने उन्हें बुत फरोख्त करने के लिए भेजा। हजरत इब्राहीम ने बुत के गले में रस्सी डाली और उसे जमीन पर घसीटने लगे जिससे वो मिट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गया और बाजार जाकर ये आवाज लगाई कि ऐ लोगो आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है, अक्लो होश से खाली है, जो नफा नुकसान का मालिक नहीं है। हजरत इब्राहीम का बुत से ये सलूक बुत फरोशों की नजर में तौहीन आमेज था। उन्होंने आजर से शिकायत की। आजर ने इब्राहीम को समझाया। एक दिन हजरत इब्राहीम ने अपने वालिद आजर से कहा कि आप अपने हाथों से लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाते
ہیں जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही देख सकते हैं और ना ही नफा दे सकते हैं और ना ही नुकसान। आज़र ने कहा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? दोबारा ऐसे ना कहना वरना तुम्हें सख्त सजा दूंगा। हजरत इब्राहिम ने लोगों से कहा कि इबादत और सजदे के लायक न नमरूद है और ना ही ये बुत हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात पाक है जो कायनात को बनाने वाला है। हजरत इब्राहिम का नाम और पैगाम तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से हजरत इब्राहिम के मुतल्लिक पूछा। जब उसे हजरत इब्राहिम के बारे में पता चला कि वो नमरूद के घर पले हैं और बुतों की इबादत से बेजार हैं, तो उसने हजरत इब्राहिम को अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब हजरत इब्राहिम आए तो उसने पूछा, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो कौन है? तो आपने कहा कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है। हजरत इब्राहिम की वालिदा ने बादशाह से कहा कि ये अभी नादान है, और आज़र ने कहा कि मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रहने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर इब्राहिम को माफ करता हूँ, अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो उसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे और शिर्क से रोकते रहे। आज़र को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और हजरत इब्राहिम को घर से निकाल दिया। आप फिर भी अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे, बुतों और नमरूद की खुदाई का इनकार करते रहे। हजरत इब्राहिम जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो कहत साली हुई। हजरत इब्राहिम से किसी ने कहा कि नमरूद गल्ला तकसीम कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां जाते हैं, आप गल्ला लेने नहीं जाते बल्कि अल्लाह की इबादत करने की दावत देने के लिए जाते हैं। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और कहा, तुझे गल्ला नहीं मिलेगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, तू नहीं देगा बल्कि मेरा अल्लाह मुझे गल्ला देगा। हजरत इब्राहिम ने देखा वहाँ जम्मे गफीर लगा हुआ है जो गल्ला लेने आए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सबसे कि मेरा अल्लाह रिस्क देता है, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है और वही पिलाता है। मेरा अल्लाह वो है जो तुम सबको भी खिलाता है और सबको जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा इब्राहिम से, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने दो बंदे बुलाए, एक के बारे में कत्ल का फैसला हो गया था और दूसरा जेल में कैद था। नमरूद ने जिस पर फैसला हो गया था फांसी का उसे रिहा कर दिया और जो दूसरा था जो चंद दिन के लिए कैद हुआ था उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और कहने लगा, इब्राहिम देखो मैंने एक बंदे को जिंदगी दे दी और दूसरे पर मौत तारी कर दी। हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिंदगी और मौत का मतलब होता है रूह को जिस्म में डालना और निकालना। हजरत इब्राहिम ने कहा, अगर तू खुदाई का दावा करता है इस पूरी कायनात में तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब के अंदर गरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा, मैं तुझे रब मान लूंगा। हजरत इब्राहिम की बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने कहा कि इब्राहिम रब रोज मशरिक से सूरज निकालता है, उसे तू कह के आज मगरिब से निकाल दे। मुफस्सरीन का कहना है कि हजरत इब्राहिम अगर दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह मगरिब से सूरज को तलू कर देते और हजरत इब्राहिम की सदाकत अल्लाह वहाँ भी साबित कर देते। अल्लाह की दावत देने के बाद हजरत इब्राहिम वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ख्याल आता है कि घर जाऊंगा तो बीवी गल्ले के इंतजार में है, इन्हें क्या कहूँगा। हजरत इब्राहिम ने 2 बोरियां रेत से भर ली और घर ले गए। जब घर में दाखिल हुए तो हजरत इब्राहिम पर थकावट थी, नींद का गलबा था। आप एक जगह टेक लगाकर सो जाते हैं। हजरत सारा ने देखा कि इब्राहिम गल्ला लेकर आए हैं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जब बोरियां खोली तो वो गंदुम के आटे से भरी हुई थी। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने अपनी कुदरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर दिखाई। मुल्क बाबल के लोग एक त्योहार मनाया करते थे शहर से बाहर जाकर। जब वो सब चले गए तो शहर में सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए। तो आप बुत खाने की तरफ गए जहाँ बड़े बड़े बुत रखे हुए थे और उन्हें सजाया गया था। हर बुत को खास मुकाम हासिल था, कोई औलाद देने वाला था, कोई रोजी देने वाला, कोई शादी करवाने वाला था तो कोई बारिश बरसाने वाला था। आपने सब बुत तोड़ दिए, किसी का कान तोड़ा, किसी का हाथ, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सर और किसी की नाक तोड़ दी और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और चले गए। जब सब लोग वापिस आए और बुत खाने का रुख किया तो बुतों को टूटा हुआ देखकर सब परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये सब किसने किया है। जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा जालिम है। फिर लोगों ने कहा कि इब्राहिम के सिवा ये कोई नहीं कर सकता, वो बुतों को बुरा भला कहता है और उनकी इबादत से बेजार है, इसलिए ये सब इब्राहिम ने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और सबके सामने पूछा कि बुतों को तुमने तोड़ा है? तो उन्होंने कहा जो जख्मी बुत हैं उनसे पूछो, वो सब उसी बुत का नाम लेंगे जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है। कुरान पाक में इरशाद है, कुछ साथ के लिए सब खामोश हो गए और लोगों ने कहा कि वो कैसे कर सकता है, वो तो हिल भी नहीं सकता और ना बोल सकता है, जो बताएगा। हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, अगर उस पर मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी नहीं उड़ा सकता, फिर ये तुम्हें नफा नुकसान कैसे दे सकता है। मगर हैरानी की बात यह है तुम फिर भी इसकी
इबादत करते हो जो खुद लाचार है, जिसने सारी कायनात बनाई, तुम उसकी इबादत नहीं करते जो हर चीज पर कादिर है। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सोच में डूब गए कि सच में लकड़ी और मिट्टी से बने हुए बुत हमें न नफा दे सकते हैं और ना ही नुकसान दे सकते हैं और ना ही वो अपने आप को बचा सकते हैं। हम वाकई ही जुल्म कर रहे हैं अपनी जानों पर। और वो शर्मिंदा हो गए। मजमे में खड़े एक शख्स को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि हमारे बुतों का ये हाल तुमने किया है, अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो तुम फिर ऐसा ही करोगे। फारस के देहात का एक शख्स था जिसका नाम इकरात था। उसने हजरत इब्राहीम को जिंदा जलाने का मशवरा दिया ताकि अपने खुदाओं को हम इब्राहीम से बचाएं। हजरत इब्राहीम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता, जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैंने जो भी कहा है वो हक और सच को बयान किया है। नमरूद ने ऐलान करवा दिया उस शहर में और आसपास के इलाकों में कि हमारे बुतों को तोड़ने वाले और उनकी तौहीन करने वालों को सजा के तौर पर आग में डाला जाएगा। इसलिए सब लकड़ियां जमा करें और जो ईंधन जमा करेगा उसकी दिली मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा की। 1 महीने तक लोग लकड़ियां जमा करते रहे और एक खुले मैदान में बड़ा सा अलाव जलाया गया जिसको दहकाने में 7 दिन लग गए। शोले बढ़ गए और आसमान तक उसकी लपटें जाने लगी। अगर कोई परिंदा भी उसके पास से गुजरता तो जलकर राख हो जाता। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 16 साल बताई जाती है और दूसरी रिवायत में 26 साल बताई गई है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने का वक्त आया। आग के करीब जाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। अब किसी में हिम्मत नहीं थी आग के पास जाने की। हजरत इब्राहीम से कहा गया, खुद आग में चले जाओ। हजरत इब्राहीम ने कहा, मैं क्यों जाऊं, तुमने मुझे जलाना है तो खुद डालो। आग में अब फेंकने का कोई तरीका नहीं था। करीब जाते तो खुद भी जलते। शैतान ने इंसानी रूप में आकर गुलेल की तरह की एक मंजनी बना कर दी। हजरत इब्राहीम के कपड़े उतार कर इन्हें रस्सियों से बांध कर उछाल दिया। हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब हजरत इब्राहीम हवा में उड़े तो हजरत जिब्राइल दाईं तरफ और बाईं तरफ पानी का फरिश्ता आ गए। वो इंतजार में हैं, हुक्म आए और हम आग को बुझाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाएं। हजरत इब्राहीम की जुबान से सिर्फ एक ही कलमा जारी था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहीम से कहा कि आपको जरूरत नहीं हमारी। हजरत इब्राहीम ने कहा, जरूरत है मुझे, आपकी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की, बेशक मैं उसका मोहताज हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग ठंडी हो जा सलामती के साथ मेरे इब्राहीम पर। अगर अल्लाह सलामती का जिक्र ना करते तो वो बहुत ठंडी हो जाती और वो हजरत इब्राहीम को तकलीफ का बायस बनती। आग के शोले ठंडे हो गए और आग को हजरत इब्राहीम की गोद बना दिया। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, ऐसे आराम से अंगारों पर बिठा दिया। आग को भड़कता हुआ देखकर कबूतर अपनी चोंच में पानी लेकर आया और आग में डालने लगा। उसे पता था कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली। मक्का और मदीना में सिर्फ कबूतर हैं जो तवाफ करते हैं, सिर्फ उस कबूतर की वजह से। और एक बड़ी छिपकली जिसे गिरगिट कहा जाता है, उसने फूंक मारकर आग को बढ़ाने की कोशिश की। अल्लाह ने उसकी नफरत लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कहीं भी इसे देखो फौरन मार दो। आग गुलो गुलजार में बदल गई अल्लाह के हुक्म से और 3 रोज तक किसी भी आग में तपिश ना रही। उस आग में हजरत इब्राहीम एक कौल के मुताबिक 7 दिन रहे, एक कौल के मुताबिक 40 दिन का जिक्र किया गया है। हजरत इब्राहीम को जिन रस्सियों से बांधकर फेंका था वो जल गईं, लेकिन आपको कुछ भी ना हुआ। आग जलकर खत्म हो गई। आप मुस्कुराने लगे। आपके वालिद देखकर कहने लगे, इब्राहीम तेरा रब तो बहुत बड़ा निकला, तुझे कुछ भी नहीं होने दिया। हजरत इब्राहीम का यकीन था कि मेरा रब मुझे काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब हर चीज पर कादिर है। नमरूद ने फिर भी खुदाई का दावा न छोड़ा। नमरूद को लगा कि लोग इब्राहीम के खुदा पर ईमान न ले आए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को शहर बदर कर दिया जाए। हजरत इब्राहीम खुद भी वहाँ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना साजो सामान इकट्ठा किया और चलने की तैयारी की। आप अपने भतीजे लूत और बीवी हजरत सारा को लेकर बाबल शहर छोड़कर चल दिए। अल्लाह ने हुक्म दिया अर्ज़ शाम की तरफ हिजरत करने का। मुअर्रिखीन ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम ने आग से निकलने के बाद नमरूद को दीन हक की दावत दी। इस बदबख्त ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। अल्लाह ने सबसे कमजोर मखलूक मच्छरों को भेजा। वो इतने ज्यादा था कि आसमान पर अंधेरा
چھا گیا اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ مچھروں نے ان کے سروں اور ناک پر حملہ کیا، وہ سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر واپس آیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا۔ مچھر اس کے دماغ میں جا کر اس کا خون چوسنے لگا۔ نمرود بہت بے چین رہنے لگا۔ اس نے چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ اس کے سر پر چپل سے مارا جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال کا عرصہ گزر گیا، بالآخر اسی کفر کی حالت میں مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔